Yes, Shreya, 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 but are Yes, you sir. listening? But last class में have do you have remember कि I have finished from this topic? This topic. Yes, sir. Premium. हाँ, Yes. Ram and Rahim was he Yes. has brought the following aspect towards his share of capital and goodwill. So how we had recorded, I have taught, but I'm doing recap from there so that you can understand which topic we have to start. So after this, I will be sharing three more questions relating to goodwill. After that, I will be teaching uh, accumulated profit, loss, and reserve. Already I have taught, but in admission chapter again the same topic is here. Okay. Okay, students. Now you can take the screenshot of it. Just I'm going to read and then I'll show you how is to be solved. Again, once already I have taught. So condition is when new part brings asset for his share of capital and goodwill. So new partner brings asset. Asset means is bringing in kinds other than cash, capital and goodwill, or we can say bring in kinds other than cash. So these are the condition case what already I have taught, and the question is from your textbook, question number 36. Ram and Rahim are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On April 1st, 2016, they admit Raz as the new partner for 3/13 share in the profits. Okay, so Raz share is given 3/13, and now the new ratio will be 5:5:3. New ratio is given itself. Raz contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill. So what kind of asset he has given or contributed? Let's see. So land of rupees 2,50,000, plant and machinery of rupees 1,50,000, stock of rupees 80,000, and debtors of rupees 70,000. On the date of admission of Raj, the goodwill of the firm was valued at rupees 5,20,000. So here, students, the firm's goodwill is given. Record necessary general entry in the books of the firm. So let's see how to be recorded. I hope you all have taken this screenshot. Done? Screenshot? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So students, you will see the solution here. The following asset what Raj has brought: land of rupees 2,50,000, plant machinery 1,50,000, stock 80,000, debtors 70,000, and these all assets he has brought towards his share of capital and goodwill. But it is not clearly mentioned in the question कि how much amount he is bringing for capital and premium. But one more information in the question it is given: the goodwill of the firm has been valued at rupees 5,20,000. So students, see in working note here कि जब फर्म की गुडविल दी हुई है, अगर क्वेश्चन में फर्म का गुडविल दिया हुआ होता है तो जो पार्टनर एडमिशन ले रहा है उसके हिस्से का गुडविल निकालना होता है. तो उसका शेयर क्या है? राज नया पार्टनर है, उसका शेयर है 3/13. यू कैन सी इन द क्वेश्चन. सो 3/13 आप 5,20,000 रुपए का निकालना है, बिकॉज 5,20,000, 5,20,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल. सो आउट ऑफ दैट 3/13 विल बी 1,20,000. तो ये क्लियर हो गया कि राज का शेयर होगा गुडविल में 1,20,000. तो ये जो टोटल एसेट्स वो लेकर आ रहा है इसमें कैपिटल और गुडविल दोनों है, तो इसमें से गुडविल का पैसा तो क्लियर हो गया. तो लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,20,000. तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब टोटल एसेट्स लाया है कैपिटल और गुडविल के लिए, जिसमें से गुडविल उसके शेयर का 1,20,000 हो रहा है, 1,20,000. सो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? उसका कैपिटल हो जाएगा. तो जब आप इसको टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, सो यू विल फाइंड कि दिस इज टोटल 5,50,000 ना. 5,50,000 में से 1,20,000 गुडविल का उसका शेयर है, वो माइनस कर दो तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा? 4,30,000.
that will be capital, right? अब प्रीमियम को हम करते क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं in their sacrificing ratio between all old partners. Okay, so we will write premium for goodwill account debit 1,20,000, right? ये हो गया. अब राम और रहीम are the old partner, so to Ram's capital and to Rahim's capital. And in which ratio? Sacrificing. Old ratio is 3:2 and new ratio is 5:3 दिया है क्वेश्चन में. जब old और new दोनों दिया है तो we will apply the formula sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. Okay. So Ram's share कितना हो जाएगा? Sacrificing the old ratio was 3/5 minus नया ratio क्या है? 5/13. It is given in the question. You can see in the screenshot of the question. So after solving the 14/65 is coming. ठीक. Likewise Rahim 2/5 minus 5/13 is equal to 1/65. So here it is clear. The sacrificing ratio between Ram and Rahim is 14:1. So this 1,20,000 will be shared between Ram and Rahim in 14:1 means 14/15 and 1/15. So when we do calculate, the 1,12,000 will be of Ram's and 8,000 will be of Rahim's, right? So students, I think you have understood. You can take the screenshot of it because I am teaching twice this question, the same question. In previous class I have taught and this question class. Okay, so have you taken a screenshot, students? Okay, Priyanshu, done? Okay. Yes, sir. Okay, so let's move for the next. Students, you will see here another question number 43. Okay, करना क्या है आप चेक करेंगे. It is saying that X, Y and Z were partners sharing profits and losses as to X 1/2. देखो बेटा यहाँ ना अमाउंट जो डिजिट में नहीं लिखा है. कितने स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या नया आ गया. बेटा जैसे 1 को हम 1 डिजिट में लिख सकते हैं और वर्ड में लिख सकते हैं ओ यानी 1. तो लाइक वाइज यहाँ पर लिखा है X, Y and Z were partners sharing profit and loss as to X. X का जो शेयर था 1/2 था. 1/2 मीन्स 1/2. Y का जो शेयर था 1/3 यानी 1/3 and Z का जो था 1/6 यानी 1/6 मीन्स 1/6. Okay, so students, so these are the ratios of the old partner. But further information is saying as from 1st April 2019 they agreed to admit A into partnership for 1/6 1/6 share na 1/6 share in the profit and losses. And further information is saying which he, देखो यहाँ बेटा 1/6 शेयर के लिए A को एडमिशन दिया गया. which he मतलब इस 1/6 को he means A, he means न्यू पार्टनर यहाँ पर, which means उसका शेयर 1/6, तो which he acquires equally from X and Y. So देखो बेटा 3 पार्टनर हैं, there are 3 partners. X, Y, Z ओल्ड 3 पार्टनर हैं और A नया पार्टनर है, लेकिन A अपना हिस्सा जो है 1/6 वो सिर्फ X और Y से ले रहा है और वो भी इक्वली, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हुए, सिर्फ X एंड Y हुए और किस रेशियो में 1:1 में, तो इक्वली बोला है. तो एंड is to bring rupees 50,000 for capital and 20,000 as premium for goodwill. So देखो वो अपना शेयर X और Y से ले रहा है और ये लिखा है कि A को 50,000 रुपया कैपिटल के लिए लाना है. अभी लाया नहीं, देखो यहाँ समझो लिखा है is to bring मीन्स लाना है 50,000 रुपया कैपिटल के लिए, 20,000 रुपया गुडविल के लिए. ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन हो गया. आगे कह रहा है A paid in his capital money. तो ए ने अपना कैपिटल मनी दे दिया, यानी 50,000 कैपिटल का पूरा दे दिया. बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के संदर्भ में क्या किया इसने, ही कुड ब्रिंग ओनली रुपीज 15,000, यानी लाना कितना था गुडविल 20,000, ला कितना रहा है 15,000. तो ये कौन सा केस हो गया, 4th वाला हो गया, पार्टली जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में. सो नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू give the journal entries to carry out the above arrangements
आप इसके लिए जनरलिटी पास करेंगे एंड वर्क आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं बेटा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रियांशु स्क्रीनशॉट डन? प्रियांशु ओके। सो नाउ मूविंग फॉर द सॉल्यूशन। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Okay, so working students, you will see here it is saying working for NPSR means new profit sharing ratio के लिए working मैंने बनाया है यहाँ। Here old ratio of X, Y and Z is 1/2, 1/3 and 1/6। तो लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि तीनों का रेशियो तो दिया है ओल्ड, लेकिन सबका जो डिनोमिनेटर अलग है, किसी का 2 है, किसी का 3 और किसी का 6 है। तो अभी तक जितना रेशियो आया था सबका डिनोमिनेटर सेम होता था क्योंकि रेशियो के फॉर्म में होता था। तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे? इफ वी टेक एलसीएम यानी 1/2, 1/3, 1/6 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 लेंगे, ठीक है, फॉर ऑल। देन इट कुड बी रिप्रेजेंटेड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कॉमन लेके, तो ये रेशियो हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। सबका रेशियो मतलब डिनोमिनेटर 6 हो गया, यानी 3:2:1 और 3/6, 2/6 एंड 1/6। ओके, तो ये तो हो गया। अभी हमने सिर्फ ओल्ड रेशियो को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जो अलग अलग फ्रैक्शन में था। अब आगे कह रहा है इन दिस क्वेश्चन ए इज न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर विच ही टेक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो वो एक्स और वाई से इक्वली ले रहा है अपना शेयर, ठीक है। तो अब क्या होगा? तो एक्स का जो शेयर 1/6 को उसको पहले इक्वली हम कैलकुलेट करेंगे 1:1 में, तो आएगा 1/12, 1/12 और वही वो एक्स और वाई से माइनस करेंगे न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे आपके सामने आएगा अभी। सो यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा है, हियर sacrificing ratio is given of x and y, we need to calculate sacrificing amount। आपको पता है कि जब कभी sacrificing ratio दिया होता है तो पहले हम sacrificing amount फाइंड करते हैं, है ना। ये पढ़ाया था रेशियो वाले टॉपिक में। ओके, अब हम लोग आते हैं कैसे करेंगे, ये देखो आप। तो x के लिए जो रेशियो है, x का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? हाफ, 1/2 कर रहा है क्योंकि इक्वली ले रहा है दोनों से। तो x 1/2 दे रहा है किसका? इनटू, हाफ मींस होता है इनटू, और 1/6 शेयर जो कि नया पार्टनर है तो 1/6। तो याद रखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनटू न्यू पार्टनर शेयर, आपने लिखा होगा स्टेप्स, आपके पास होगा नोट। तो आ जाएगा 1/12 एंड फॉर वाई सेम होगा 1/2 इंटू 1/6, 1/12 क्योंकि दोनों सेम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि सेक्रीफाइसिंग अमाउंट कितना है। अब आते हैं हम लोग न्यू रेशियो पे। तो न्यू रेशियो का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, तो अब अप्लाई कर देंगे यहीं पे। तो यहाँ देखो फॉर एक्स का जो ओल्ड रेशियो है वो हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ सिंप्लीफाई करके, 3:1 यानी 3/6, 2/6, 1/6। तो आ जाएगा ओल्ड रेशियो 3/6 और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है एक्स? ये 1/12, ठीक है। तो आ गया 5/12 न्यू रेशियो, ठीक ठीक। इसी तरह अब देखो वाई के लिए क्या है? वाई का जो रेशियो था ओल्ड 2/6 था और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/12। सो 1/12 सॉल्व किया तो आ गया 3/12। ये हो गया वाई का न्यू रेशियो। Z का 1/6 ओल्ड था और इसका 1/6 ही रहेगा क्योंकि ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है ना। तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे 12 है x का, y का भी 12 एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर, लेकिन इसका 6 है। तो इसमें करेंगे क्या? 2 से नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2/12, क्योंकि 6 है 12 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे करेंगे तो 1 में भी ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा, तो 2/12 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम ए का शेयर। तो ए का शेयर क्वेश्चन में दिया है 1/6 क्योंकि ए इज द न्यू पार्टनर एंड ही इज गेटिंग एडमिशन फॉर 1/6 शेयर। तो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, तो इसका भी शेयर है तो इसका भी एलसीएम इक्वल करना है। जैसे इसका हमने 2/12 किया तो इसका भी 2/12 करेंगे क्योंकि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 से यहाँ। तो अब आप देख रहे हैं कि 5/12 एक्स का शेयर है, वाई का 3/12, जेड का 2/12 और ए का 2/12। ओके, तो इसको हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 5:3:2:2। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया यहाँ तक?
आप स्क्रीनशॉट ले लो वर्किंग का, कैसे हमने वर्किंग को निकाला जाएगा। ठीक है, डन। चलो अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। उसी क्वेश्चन का जर्नल एंट्री कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। राइट, तो देखो हम लोग जर्नल एंट्री, बेटा जनरल एंट्री आप देखेंगे तो सबसे पहले नया पार्टनर जो है वो पैसा ला रहा है। क्या क्या ला रहा है? तो जो भी पैसा ला रहा है जनरली हम कैश या बैंक यूज कर सकते हैं ना, तो बैंक से कर लेते हैं, बेटर है। बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी छोड़ दो, अभी अमाउंट तुम्हें नहीं मालूम है कैसे आएगा, यहाँ देखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे टू इज कैपिटल, ए कितना ला रहा है कैपिटल के लिए 50,000। टू गुडविल के लिए लाना था 20,000, बट लाया कितना एग्जैक्टली 15,000। सो 15,000 से रिकॉर्ड करेंगे पहले, तो टोटल हो गया 65,000। राइट, अब लिख दिया हमने। अब इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसा कि आपको पता है प्रीमियम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल ओल्ड सेक्रीफाइसिंग ओनली। तो यहाँ तीन पार्टनर हैं ओल्ड एक्स वाई जेड, लेकिन गुडविल का पैसा सिर्फ एक्स और वाई को मिलेगा क्योंकि एक्स और वाई ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000। तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया था जब कोई नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो उस अमाउंट से जितना नहीं लाता है उससे उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है ना। सो ए इज द न्यू पार्टनर, ए को 20,000 लाना था, 15,000 लाया, वो तो रिकॉर्ड कर लिया बैंक डेबिट टू प्रीमियम, और प्रीमियम यहाँ डेबिट भी कर दिया। लेकिन 5,000 नहीं ला रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। राइट, तो इज करेंट अकाउंट डेबिट, याद रखो जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता तो उसका करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में आपको। डेबिट 5,000, अब दिस 20,000 शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एक्स एंड वाई इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट इज 1:1 to x capital and to y's capital ना। तो 20,000 को इक्वली बांटेंगे तो 10,000 ईच मिलेगा, दोनों को 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल एंट्री और पिछला वर्किंग नोट। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, टेक द एसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग देखो ध्यान से, मैंने गुडविल का बोला ना 2-3 क्वेश्चन मैं और आज आप लोग को पढ़ा देता हूँ क्योंकि उस दिन जल्दी जल्दी में आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट तक समझ पाए थे। तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। Z is admitted as a partner for which he pays rupees 30,000 for goodwill in cash. So देखो Z को एडमिशन दिया गया पार्टनर में, इसके लिए वो 30,000 रुपया गुडविल का पैसा दिया नकद। X, Y and Z decided to share future profits in equal proportion. तो देखो यहाँ पर X, Y, Z जो है तीनों का, यहाँ पर Z का शेयर दिया नहीं था तो लिखा Z एक एडमिशन हो रहा है, लेकिन बाद में X, Y और Z तीनों का, पहले कौन थे X और Y थे सिर्फ, लेकिन अब Z भी आ गया, तो तीनों का नया रेशियो क्या दिया है, इक्वल, यानी 1:1:1। So you are required to pass the necessary journal entry to give the effect of the above. Okay. तो बेटा सबसे पहले की ओल्ड रेशियो 3:1 है इस क्वेश्चन में। अब देखो ऊपर एक्स वाई का, और नया रेशियो क्या हो गया 1/3 1/3 1/3, क्योंकि तीन पार्टनर है और सबका इक्वल है। तो अब ओल्ड माइनस न्यू करके आप सैक्रिफाइसिंग पता कर लोगे। राइट, सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन फॉर वर्किंग फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बेटा देखो कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा क्योंकि ओल्ड और न्यू इज गिवन। The formula is old ratio minus new ratio is equal to sacrificing ratio, as you know. Now for x, old ratio of x is 3/4 and new ratio is 1/3. So after calculation you will get the 5/12. So now for y, तो इसका तो sacrifice आ गया क्योंकि पॉजिटिव है। y का देखो आप, ओल्ड रेशियो 1/4 था, न्यू 1/3 है, तो माइनस सॉल्व करने पे आ रहा है -1/12, यानी ये गेन कर रहा है बेटा, ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया ना। सो गेन कर रहा है। और इसके बाद आप देखो Z, तो Z तो बेटा न्यू रेशियो पार्टनर है, Z का ओल्ड रेशियो तो 0 था, मतलब वो था ही नहीं क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं था। नया रेशियो उसका 1/3 है तो वो 1/3 गेन ही करेगा, मतलब नया पार्टनर ऑलवेज गेनिंग पार्टनर होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ समझा दिया ओल्ड माइनस न्यू के आधार पे। ओल्ड वाज 0 -1/3 तो -1/3 माइनस में आता है तो गेन देता है।
ठीक है, तो ये तो हो गया कि सेक्रीफाइस केवल एक्स कर रहा है और वाई गेन कर रहा है। तो जो गेन करता है वो गुडविल का पैसा देता है। और रही नए नए पार्टनर की बात, तो नगद ही लाकर दे दिया। और जो पुराने पार्टनर है उससे उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। Here, Y is old partner and he is gaining, so his capital account will be debited by the amount of goodwill equal to his gaining ratio. ठीक है, कैसे आएगा बेटा? देखो यहाँ नोट, नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर बिकॉज न्यू पार्टनर ऑलवेज गेनिंग पार्टनर। क्योंकि नए पार्टनर का मैंने यहाँ निकाल कर दिखाया है, तो निकालने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है कि हमेशा वो गेनिंग पार्टनर होता है बाय द शेयर ऑफ ज्वाइनिंग इन द फर्म। ओके, so students take the screenshot of it. I am moving for the next slide. Okay, so I'm coming to the next slide. So here you will see in this question only Jade's share of goodwill is given instead of firm's goodwill. आप देखो कि इस क्वेश्चन में फर्म की गुडविल तो दिया नहीं था, सिर्फ लिखा है जेड 30,000 रुपया दे रहा है अपने हिस्से की गुडविल के लिए, है ना। बट y हैज टू पे इक्वल टू गेनिंग रेशियो। यहाँ पर y क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो y भी तो गुडविल देगा, क्योंकि z गेन कर रहा है तो गुडविल का पैसा नगद ला रहा है वो 30,000। लेकिन y जो गेन कर रहा है उसका क्या, वो भी तो देगा। लेकिन जब पुराना पार्टनर कोई गेन करता है तो वो पैसा नहीं देता, बल्कि हम उस गेनिंग अमाउंट से जितना उसका गुडविल का हिस्सा होगा उस अमाउंट से उस गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, सो हम लोग आते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर इफ जेड्स कैसे अब निकलेगा, मतलब क्वेश्चन ये है कि यहाँ जेड्स का शेयर दिया है 30,000 रुपया और वाई गेन कर रहा है। तो वाई जो गेन कर रहा है तो वो कैसे लाएगा, कितना लाएगा? तो हमारे पास फर्म का गुडविल अगर हो तो हम समझ सकते हैं कि वाई कितना लेकर आएगा। तो फर्म की गुडविल सबसे पहले कैलकुलेट की जाएगी। तो कैसे? अब देखो यहाँ पर इफ जेड्स share of goodwill is rupees 30,000 which is equal to 1/3, then firm's goodwill would be। अब बताओ कि जेड का शेयर जो है 1/3 है और उसके हिस्से गुडविल 30,000। जब 30,000 1/3 के इक्वल है तो फर्म की गुडविल क्या होगी? रेसिप्रोकल कर देंगे, 30,000 इंटू 3/1 कर देंगे। जो 1/3 है उसको 3/1 कर देंगे तो आ जाएगा पूरे फर्म की गुडविल, राइट। अब देखो वाइज शेयर इन गुडविल, वाई कितना गेन कर रहा है? 1/12 गेन कर रहा है। सो 90,000 इंटू 1/12 तो 7,500 रुपये ये वाई देगा। ये क्लियर हो गया। अब एंट्री देख लो आप। तो एंट्री में आप देखो कि जेड जो पैसा ला रहा है वो 30,000 ला रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, रिकॉर्ड ऑफ जेड्स गुडविल। 30,000 ये हो गया। अब इसी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, और चूंकि वाई गेन कर रहा है तो वाई भी दे रहा है 7,500 रुपया ये, तो लिखेंगे यहाँ वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500। और दोनों पैसा मिलेगा किसको? सेक्रीफाइस पार्टनर को, जो कि सिर्फ एक्स है, टू एक्स कैपिटल 37,500। Okay students, so I hope this is understood by you. You can revise it again and again by solving the questions. Okay, so take the screenshot of it. Just I am moving for the next. Done? Okay, next question number 40 beta from your textbook. So you will see here P, Q and R share profits in the ratio of 5:3:2. S was admitted into partnership and S brings in rupees 30,000 as his capital. So S is bringing 30,000 as his capital. S is entitled for 1/5 share in the profit, which he acquired equally from P, Q and R. तो बेटा S नया पार्टनर है, वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है प्रॉफिट में, 1/5 उसको मिलेगा, और जो कि वो एक पी क्यू आर जो ओल्ड पार्टनर उनसे बराबर ले रहा है इक्वली, यानी 1/3 1/3 1/3। तो 1/3 किसका? 1/5 का जो उसका शेयर है, यानी 1/15 1/15 एंड 1/15 आएगा, राइट। अब आगे कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। देखो बेटा यहाँ एक चीज है कि गुडविल वैल्यूएट करके ऑलरेडी नहीं दिया फर्म का, आपको कैलकुलेट करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जा रही है यहाँ पर, जो सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
Goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of the last 4 years average profit. Okay, 3 years purchase of 4 year average profit. ध्यान रखना. The profits of the last 4 years 32,000, 38, 35 and 31. ये आपका 4 साल का प्रॉफिट है. पहले इसका एवरेज निकालेंगे. कैसे एवरेज निकलेगा? चारों को जोड़कर 4 से भाग दे दो, यानी टोटल ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट. फिर एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 3 इयर्स परचेज, तो आपको गुडविल फर्म का पता चल जाएगा. आगे कह रहा है एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश. तो एस जो है वो गुडविल का पैसा ला ही नहीं रहा है. तो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक 50,000, और पहले से जो गुडविल अपीयर था, अपीयर गुडविल मींस कौन सा गुडविल हुआ? ओल्ड गुडविल. डू यू हैव रिमेंबर कि व्हेन आई वाज टीचिंग यू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, today also I had to teach, but before starting that topic I need to finish these all types of question because you can understand. So already appears goodwill is called old goodwill la, is to be retained between all old partner in their old ratio always. So give journal entries. तो journal entries देना है बेटा. अब देखो कैसे journal entry इसका होगा और कैसे वर्किंग है. So आप देखो वर्किंग फॉर गुडविल. So कैसे होगा वर्किंग फॉर गुडविल? पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट? यू कैन सी कि टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. तो टोटल ऑफ प्रॉफिट इज ईयर 1,36,000. यू कैन सी 32, 38, 35 एंड 31. तो यू विल गेट 1,36,000, राइट. अब 1,36,000 को 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 34,000. क्लियर है? अब हम लोग आते हैं गुडविल पे. तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर. तो एवरेज प्रॉफिट 34 है, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर इज 3. तो यहाँ लिख दिया एवरेज प्रॉफिट 34,000, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 3, तो आ गया 1,02,000, राइट. अब 1,02,000 में से जो एस है उसका शेयर निकाल लो. तो एस शेयर ऑफ गुडविल 1,02,000 into 1/5, तो इट विल कम 20,400, राइट. बट एस इज नॉट ब्रिंगिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है. सो विच वुड बी शेयर. अब ये 20,400 रुपए किसके बीच में शेयर होगा? पी क्यू आर के, और किस रेशियो में? सेक्रीफाइजिंग. तो सेक्रीफाइजिंग तो क्वेश्चन में ही दिया है, बोला है कि जो नया पार्टनर है एस, वो अपना शेयर तीनों से इक्वली ले रहा है, तो इक्वल सेक्रीफाइजिंग हो जाएगा. सो 20,400 को इक्वली डिवाइड करेंगे 1/3 करके, तो आएगा 6,800 ईच. सबको 6,800 रुपये मिलेंगे, पी क्यू और आर. ओके, सो टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. जस्ट आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. डन बेटा? डन? Yes, sir. Okay. In this question, beta, same solution I am showing here. In this question, sacrificing ratio is given, which is 1:1. So पहले की S 30,000 as his share of capital, so cash account debit to S capital account 30,000, right. अब दूसरी एंट्री क्या होगी? S had to bring rupees 20,000 for his share of goodwill, but he can't bring at that time. It is saying in the question he does not bring. तो क्या करेंगे हम लोग कि न्यू पार्टनर यानी एस करंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम. तो उसका शेयर ऑफ प्रीमियम कितना हो रहा है? 20,400. उसका करेंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, राइट. अब क्या क्रेडिट करेंगे? किसको मिलेगा ये पैसा? पी क्यू एंड आर को. तो लिखेंगे टू पीज कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, that is 1:1 to 6,800, 6,800 and 6,800 you will get. Okay, so ये तो हो गया बेटा इसका. अब इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ है पहले से, अपीयर्स. तो ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटेन बिटवीन ऑल ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ओल्ड पार्टनर इज पी क्यू आर. तो राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल को डेबिट किया जाता है. तो पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ओके, 25,000, 15,000, 10,000 कैसे आया? ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो आप देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है. आई थिंक कि 532 दिया हुआ है.
तो आप देखेंगे उसी के हिसाब से शेयर कर लेंगे। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। डन, बताइए। उत्पन्ना, श्रेया, प्रियांशु, सही, डन है, हो गया? यस सर। ओके, सर्विस इज नॉट हियर, might be network issue or something. Okay, okay, so now I'm moving on the next slide. So this is the today's topic। बेटा आप लोग अच्छे से अब कर लो, जहाँ तक मैंने पढ़ाया वो खत्म हो गया गुडविल का। आज हम लोग को पढ़ना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, बट उससे पहले आप लोग देख लो कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है एडमिशन में एंड कितने टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है? सो बेटा, इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी आर एज बिलो। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, अभी अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मतलब कर तो चुके थे, आज फिर से हम लोगों ने पढ़ लिया दोबारा, ठीक है? तीसरा टॉपिक पढ़ना था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग अभी पढ़े थे पिछले क्लास में, हम आपको रिटायरमेंट में भी पढ़ाए हैं, जो लिंक भेजकर वीडियो भेजे थे, या सेकेंड चैप्टर जब आप पढ़े हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें भी पढ़ाए हैं। तो हर तरफ हम आप लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा चुके हैं, कैसे होता है रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री, ठीक है? कई बार आप वीडियो में देख चुके हैं, ये भी हो चुका है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड फिक्सेशियस एसेट्स। तो बेटा ये टॉपिक भी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में, कि जनरल रिजर्व, WCR, IFR, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे ये सब बांटते हैं जब अपीयर होता है बैलेंस शीट में, ठीक है? लेकिन आज हम इसको फिर से रेड वाला जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा समय नहीं है, और 5 मिनट डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझा देंगे। और क्या पढ़ना है इसके बाद? हिडन गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है? फिर उसके बाद पढ़ना है हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। फिर पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमको इतनी चीज़ें पढ़नी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें से देखो लगभग चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। जहाँ रीड वाला फोर्थ है वो सब आप पढ़ चुके हो, और हिडन गुडविल सिर्फ आपको नहीं बताए हम इसमें कैसे होता है, और partners capital account already you know, but once I need to teach you। so fourth step तक आपका complete है, यानी fourth step complete है, तो समझ लो कि तुम्हारा पार्टनरशिप का 90% खत्म हो गया है, ये तो समझ लो, क्योंकि बाकी सब चीज़ों में कुछ है नहीं, वो सब भी आप पढ़ चुके हो पहले का, बस थोड़ा थोड़ा जो चेंज है उसको हमें बताना है। But do practice, if you are not doing practice you will not get anything, because all the chapters of the partnership are interrelated। if we have studied in a deep change in profit sharing ratio, suppose that कि हमने अगर अच्छे से पढ़ लिया change in profit sharing, तो आपका एडमिशन भी लगभग तैयार है, रिटायरमेंट भी तैयार है, डेथ भी तैयार है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसको अच्छे से तैयार करो और पढ़ाई करो आप लोग। सो नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पर नोट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हैज बीन डिलीटेड लिखा है मैंने लास्ट में, नोट देखो, अभी इस साल डिलीट हुआ है बोर्ड पर्पस के लिए, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में आएगा, बोर्ड ने कहा है कि ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ, इसको फिर से कंसीडर किया जाएगा इवन व्हेन यू विल अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव पेपर्स, सो दिस टॉपिक विल बी कमिंग। ओके ओके स्टूडेंट्स, so you will see accounting treatment of accumulated profit reserve loss and fictitious assets at the time of admission of new partners। so जैसा कि आप लोग को ये पता है, पढ़ चुके हो, फिर भी थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, क्योंकि क्लास का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया है आप लोगों का और 10 बजने वाला है, ठीक है? तो इसको स्टार्ट ही नहीं करते हैं आप, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि दूसरी क्लासेस भी हैं और आप लोग की भी क्लासेस होंगे दूसरे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप बताइए, इफ देयर एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क।